Welcome to Injili Media. ڈاکٹر ذاکر نائک نے عرصہ دراز سے مسیحیوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا ہوا ہے کہ بائبل مقدس سے ثابت کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کی جائے۔ ہمارے کچھ مومن حضرات جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس سوال کو بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بیان میں اپنے الفاظ میں یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو آج ہم اس سوال کا بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف اور اسلامی عقائد کے حوالے سے جواب دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسلامی عقائد میں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں یا صفات ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ 99 صفات یا اللہ تعالیٰ کے نام کیسے خداوند یسوع مسیح کے ناموں سے ہی مماثلت رکھتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے نام ہیں جو خوبہو مکمل طور پر وہی صفات ہیں، وہی نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو میں جو اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو بیان کروں گا، لیکن بائبل مقدس میں ان کا جس طرح سے ذکر ہوا ہے وہ نہیں پڑھوں گا، لیکن صرف حوالہ دوں گا، کیونکہ جو نام اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہیں ہمیں وہی نام خداوند یسوع مسیح کے بائبل مقدس میں بھی ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو چیلنج ہے کہ مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آج ہم اس ویڈیو میں قرآن شریف سے اور اسلامی عقائد سے ہی ثابت کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کب اور کہاں یہ دعویٰ کیا کہ وہ الہی ہیں، ڈیوائن ہیں اور وہ خدائی صفات کے مالک ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے نام ہیں، اور یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف چند ناموں ہی کو لوں گا، کیونکہ بہت سے نام ایسے ہیں جو کم و بیش سینونیمس ہیں، یعنی کہ ان کے معنی ملتے جلتے ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ 99 ناموں کی فہرست بہت لمبی ہے، اس لیے اس ویڈیو میں صرف ان ناموں ہی کا انتخاب کروں گا جو بہت زیادہ اہم ہیں، سٹرائکنگ ہیں، اور جو خدائی صفات کو بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ صفات صرف اور صرف خدا ہی کی پاک ذات کی ہو سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے پہلے نام کی طرف، اور یہ ہے الرحمن۔ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن اسلامی ویب سائٹس کے مطابق یوں کیا گیا ہے: The beneficent, the merciful, the compassionate, most gracious۔ تو خداوند یسوع مسیح یا ہمارے خداوند کے لیے یہ نام، یہ صفات، یہ القابات ہم دیکھتے ہیں زبور 103 باب کی 8ویں آیت میں اور نہمیہ کے صحیفے کے 9ویں باب کی 17ویں آیت میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نام الرحیم، موسٹ مرسیفل۔ بائبل مقدس میں ہمیں اپنے خداوند کا نام موسٹ مرسیفل الرحیم خروج کی کتاب کے 34ویں باب کی 6 آیت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ زبور 103، زبور 86 5ویں اور 15ویں آیت، زبور 145 8ویں آیت۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نام الملک، the king, the sovereign king۔ خداوند کا یہ نام ہم دیکھتے ہیں زبور 19ویں باب کی 16ویں آیت میں۔ اس کے علاوہ زبور 24 میں بھی ہمیں یہ نام خداوند سے منسوب ملتا ہے۔ السلام، پیس اینڈ بلیسنگ، the source of peace۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کا یہ نام یا ان کی یہ صفت یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 27ویں آیت میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ نام یا یہ صفت جو خداوند سے منسوب ہے ہم دیکھتے ہیں یسایہ 9 باب کی 6 آیت، میکا 5 باب کی 5ویں آیت۔ العزیز، the most honorable, almighty۔ بائبل مقدس میں خداوند کا یہ نام ہم دیکھتے ہیں پہلا تواریخ اور اس کے پہلے باب کی 27ویں آیت میں۔ الخالق، the creator، یوحنا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، یوحنا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت، کلسیوں کا خط پہلا باب
छठी आयत, अल गफ्फार द फॉरगिविंग माफ करने वाला, मरकस 2 बाब की 10 आयत और ज़बूर 86 की 15वीं आयत, अर्राफी अल मोइज दोनों के हवाले हमें मिलते हैं मत्ती 23 बाब की 12 आयत और युसाया 75 बाब की 7वीं आयत। अर्राफी या अल मोइज का मतलब है द एग्जाल्टर, यानी कि जो किसी को सरबुलंदी देता है या उसकी इज्जत अफजाई करता है। इसी हवाले में इसका बिल्कुल हमें अपोजिट भी मिलता है, जो अल्लाह ताला का नाम है अल खाफिज, इसे अल खाफिज भी पढ़ा जाता है और ये वही दोनों हवाले हैं मत्ती 23 बाब की 12 आयत, युसाया 75 बाब की 7वीं आयत। अल हाकम जज अल्लाह ताला का इससे मिलता जुलता दूसरा नाम अल अदल भी है, यानी कि अदल करने वाला, और ये हवाले हमें मिलते हैं यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 22वीं और 27वीं आयत में और मत्ती रसूल की इंजील के 5वें बाब की 31 से 46वीं आयत में। अल कय्यूम द सेल्फ सबसिस्टिंग, द वन हु रिमेन्स एंड डज नॉट एंड, वो जो कायम रहता है और उसका कभी खात्मा नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद का ये नाम हमें मिलता है कुर्सियों 1 बाब की 16वीं आयत में और ज़बूर 115 बाब की 3री आयत में। अन्नूर 1 करंथियों 2 बाब की 8वीं आयत, यूहन्ना 8 बाब की 12वीं आयत, यूहन्ना 11 बाब की 40वीं आयत, यूहन्ना 2 बाब की 11वीं आयत। इसके अलावा हम खुदावंद का ये नाम ज़बूर 24 बाब 8 से 10वीं आयत में भी देखते हैं। अल बाकी हमेशा रहने वाला, युसाया 57 बाब की 15वीं आयत, ज़बूर 72 बाब की 17वीं आयत, मालिकुल मुल्क, वो जिसकी हुक्मरानी हमेशा कायम रहती है, बादशाहों का बादशाह जिसकी बादशाहत की कोई इंतहा नहीं, ज़बूर 9 बाब की 7वीं आयत। इसके हवाले और भी बहुत हैं, बल्कि इन तमाम सिफात और नामों के हवाले एक से ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ चंद हवाले ही पेश कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अल्लाह ताला का नाम या सिर्फ अल माजिद, द नोबल, द मोस्ट ग्लोरियस। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद की ये सिफ्त या नाम हम देखते हैं ज़बूर 24 बाब में, ज़बूर 93 बाब में और ज़बूर 93 में इससे मिलता जुलता नाम द मैजेस्टिक भी देखते हैं। इसके बाद हम ये बहुत ही अहम नाम अल अव्वल यानी कि द फर्स्ट, द बिगनिंग, मुकाशफा 1 बाब की 8वीं आयत, 22 बाब की 13वीं आयत और यूहन्ना 1 बाब और उसकी 1 आयत। अल आखिर, द फाइनल वन, द एंड, ये भी हम इन्हीं हवालों में देखते हैं, यानी मुकाशफा 1 बाब 8 आयत, मुकाशफा 22 बाब और 13वीं आयत। अल वकील हवाला हम देखते हैं युसाया 25वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। अर रज़ाक, रिस्क देने वाला, प्रोवाइडर। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद के इस हवाले से बहुत से नाम हैं, बहुत सी सिफात हैं, जा बजा उनका जिक्र है, लेकिन सिर्फ चंद हवाले यहाँ मैं पेश करना चाहूंगा। ज़बूर 23 बाब, ज़बूर 107 और उसकी 9वीं आयत, 1 तीमुथियुस उसका 6 बाब और 17वीं आयत। इसके बाद हम अल्लाह ताला के अगले नाम की तरफ चलते हैं, अल हलीम, द मोस्ट फॉरबेयरिंग, हलीम। कुर्सियों 3 बाब 13 से 16वीं आयत तक, रोमियो 2 बाब और 4 आयत, खरूज 34 बाब की 6 आयत। इसके बाद हम अल्लाह ताला के ये नाम देखते हैं, अल अजीम, अल जलील, द मैग्निफिसेंट, द सुप्रीम। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद के ये नाम हम देखते हैं ज़बूर 96 में, ज़बूर 24 में, यिर्मयाह 10 बाब की 6 आयत में और ज़बूर 96 बाब की 4 आयत में। अल अली, द एग्जॉल्टेड, द मैजेस्टिक, द मोस्ट हाई, ज़बूर 47 की 2 आयत और ज़बूर 91 और उसकी 1 आयत। अल हफीज, प्रोटेक्ट करने वाला, द प्रोटेक्टर, 2 थिस्सलुनीकियों 3 बाब की 3 आयत, ज़बूर 46, ज़बूर 23, ज़बूर 121, युसाया 57 की 17वीं आयत। अल अदल, इंसाफ करने वाला, अदल करने वाला, मत्ती 16 बाब की 27 आयत, ज़बूर 9 बाब की 4 और 7 आयत, मुकाशफा 11 बाब की 18 आयत, युसाया 40 बाब की 10 आयत। ये वो हवाले हैं जो खुदावंद को आदिल या इंसाफ करने वाला या जजमेंट करने वाला, राइचस जज करार देते हैं। अल वदूद, द मोस्ट
loving। ज़बूर 36 बाब की 7 आयत, ज़बूर 69 की 16वीं आयत और इसके अलावा पहला यूहन्ना 4 बाब की 7 से 12 आयत। बल्कि बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में यहाँ इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदा को ना सिर्फ मोस्ट लविंग बल्कि खुदा को लव मोहब्बत ही करार दिया गया है कि खुदा मोहब्बत है। वो सिर्फ मोहब्बत करने वाला ही नहीं बल्कि वो खुद मोहब्बत ही है। और खुदा यीशु मसीह ने तो अपनी जमीनी मिनिस्ट्री में ये साबित करके दिखाया कि वो किस कदर मोहब्बत और रहम से भरपूर शख्सियत के मालिक थे। खुदा मोहब्बत है या मोहब्बत करने वाला है। बाइबल मुकद्दस में इसके हमें तकरीबन 40 से भी ज्यादा हवाले मिलते हैं जो कि डायरेक्ट हैं और इनडायरेक्ट तो बहुत ज्यादा है। अल मजीद द मोस्ट ऑनरेबल, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यहूदा के खत पहले बाब की 25वीं आयत में खुदा उनका ये नाम। इसके अलावा हम पहला तवारीख 16 बाब की 27 आयत में भी हमें खुदावन का ये नाम या सिर्फ मिलती है। अलबाइस द रेज़रेक्टर, खुदावन यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया तो मरियम से ये कहा कि कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ। अलबाइस द रेज़रेक्टर, जिंदा करने वाला, मुर्दों को दोबारा जिंदगी बख्शने वाला। यूहन्ना की इंजील 11 बाब की 25वीं आयत, यूहन्ना 5 बाब की 25वीं आयत, जहाँ ये लिखा हुआ है कि खुदावन की आवाज सुनकर मुर्दे कब्रों में से जिंदा होकर निकल आएंगे। अल हक द ट्रूथ, खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। यूहन्ना 14 बाब की 6ठी आयत। अल कवी, माइटी, कुव्वत वाला, मुकाशफा 1 बाब की 8वीं आयत। अल हमीद, जिसकी हम्द की जाए, जो हम्द के लायक है। ज़बूर 72 बाब की 17वीं आयत, ज़बूर 18 3री आयत। और यहाँ मैं ये बात बयान करना चाहता हूँ कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक तमाम हम्द, तमाम तारीफें किसके नाम की हैं? सिर्फ अल्लाह के नाम की। और बाइबल मुकद्दस में हमें यही बात खुदा यीशु मसीह से मंसूब मिलती है। अल मुही, रिवर ऑफ लाइफ, यूहन्ना 14 बाब की 6ठी आयत। अल हई, द एवर लिविंग, हमेशा जिंदा रहने वाला, यशायाह 9 बाब की 6ठी आयत और मुकाशफा 1 बाब की 18वीं आयत। इसके अलावा हम ये सिफ्त या ये नाम जो खुदावन से मंसूब है मत्ती 28 बाब की 20वीं आयत में भी देखते हैं। अल कादिर, कुदरत वाला, यशायाह 9 बाब की 6ठी आयत, यशायाह 26 बाब की 4थी आयत। इसके अलावा हम ये सिर्फ मुकाशफा 19 बाब की 1 आयत और ज़बूर 62 की 11वीं आयत में भी देखते हैं। अर्राऊफ, मोस्ट काइंड, खुदा यीशु मसीह की काइंडनेस, उनकी रहमदिली कोई एक हवाले से नहीं बल्कि इंजील मुकद्दस खुदा यीशु मसीह के तमाम मोजज़ात, उनकी काइंडनेस, उनकी रहमदिली, दूसरों पे तरस खाने के हवाले से ही भरी पड़ी है। खुदा यीशु मसीह तो बच्चों से भी बड़ी शफकत और रहम और मोहब्बत से पेश आते थे। जुल जलाल, द लॉर्ड ऑफ मैजेस्टी, जलाल का बादशाह, मत्ती 24 बाब की 30वीं आयत, मत्ती 16 बाब की 27वीं आयत, लूका 21 बाब की 27वीं आयत, मत्ती 26 बाब की 64वीं आयत। अल हादी, द गाइड, द टीचर, इसका हवाला भी देने की जरूरत नहीं क्योंकि खुदा यीशु मसीह को इंजील मुकद्दस में बार बार उनको टीचर, उनको रबी, उनको हादी कहकर पुकारा गया। असबूर, वो जो सब्र करता है, दूसरों की बर्दाश्त करता है, चाहे वो बहुत गुनहगार हो, बार बार खता करे फिर भी मुआफ करे। इसका हवाला हमें मिलता है ज़बूर 103 बाब की 8वीं आयत में और खुरूज 34वें बाब की 6ठी आयत में। तो ये वो नाम थे और ये तमाम 99 नाम नहीं है, सिर्फ चंद नाम मैंने लिए हैं जो अल्लाह ताला के साथ मंसूब हैं, जिन्हें अल्लाह ताला के 99 नाम कहा जाता है, द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इनमें से मैंने जो नाम मुंतखब किए हैं तमाम का जिक्र मैंने यहाँ नहीं किया, गो के तमाम का भी किया जा सकता है सिवाय 1-2 के जिनकी मनफी कॉनोटेशन है। तो ये तमाम के तमाम नाम खुदा यीशु मसीह के नाम है, उनकी सिफात हैं और बाइबल मुकद्दस में मैंने उनके हवाले आपके सामने रखे हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, मुतालबा करते हैं, चैलेंज करते हैं, वेयर इन द बाइबल जीसस सेज ही इज गॉड, गॉड के, अल्लाह ताला के जो भी नाम है, सिफात हैं, यहाँ मैंने उनमें से कुछ
सबका जिक्र नहीं किया, गो के सबका हो सकता है, कुछ का जिक्र किया है कि जो नाम अल्लाह के हैं वही नाम बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के नाम हैं। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा पूरा कर दिया। समझने वाले समझ सकते हैं, लेकिन जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो देखते हुए ना देखेंगे और सुनते हुए ना समझेंगे। Thanks for watching.